اور جتنے بھی سیکورٹی ادارے ہیں ان سب کے شہیدوں کی شہادت کے طفیل ہمارے اس ملک خداداد پاکستان کو امن و امان کا گہوارہ بنا، دشمنوں کے ناپاک عزائم سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یار تھوڑا پیچھے ہو جائے آپ لوگ۔ تار بوبا سمجھ لائے پکی دلته ټیکته کنه یار تارونه ټول لګېدلي دي دلته ټیکته یار احتشام بھائی تارونه پیچھے آ لګېدلي جاؤ ټول احتشام بھائی، دلته تھوڑا ټیکته پیچھے آ جائے یار، تھوڑا سا پیچھے آ جائیں۔ دیتا ہے لکشا تراش زاید لکشا تراشی زاہد بھائی یار یار اعظم تا تراشی کانے یار کیمرو مخه ته چې تاسو ودرېږئ نو موږ څه کوو؟ دیکھیں دہشت گردی آپ کو پتہ ہے کہ اس صوبے کا سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، 15-20 سالوں سے ہے۔ بیچ میں حالات ٹھیک بھی ہو گئے تھے، لیکن جیسے ہی رجیم چینج ہوئی اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات مسلسل خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے، معاشی طور پہ بھی بڑی مشکلات آ رہی ہیں اور ملک نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس حالات میں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ جو ہماری پولیس جتنی قربانی دے رہی ہے، جو سیکورٹی ادارے قربانی دے رہے ہیں، وہ آپ کو سب کے سامنے ہے۔ اصل ایشو یہ ہے کہ کیا ہمارے جو خارجہ پالیسی ہے اس پہ ہمیں نظر ثانی کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے۔ جو حالات بن رہے ہیں اس ملک کے اندر وہ آپ کے سامنے ہے۔ وزیر داخلہ کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے صرف اسلام آباد کے ٹیریٹری کا وزیر داخلہ ہے وہ۔ باقی دیکھیں یہ صوبہ بڑا حساس صوبہ ہے اور اس میں فوکس کرنا ہوگا مل کر اداروں کو اور حکومتوں کو مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنی ہوگی۔ اس وقت صوبہ تنہا چھوڑ دیا گیا ہے، ہر لحاظ سے نہ ہمارا حق دیا جا رہا ہے، نہ ہمیں سپورٹ کیا جا رہا ہے، ہر طرف سے صوبے کو تنہا کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ہمارے ساتھ افغانستان کی بارڈر لگی ہوئی ہے، افغانستان کی بارڈر جو ہے وہ کنٹرول کرنا اس وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہاں پہ حالات خراب ہو کر لوگ وہاں سے اگر آ رہے ہیں تو ہماری خارجہ پالیسی کہاں ہے، کدھر ہے؟ وہ کیوں نہیں بات کرتے کابل حکومت کے ساتھ کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو میرے خیال سے اس وقت بدقسمتی ہے کہ جو امپورٹڈ حکومت ہے وہ ٹوٹلی ناکام ہے، کوئی کچھ نہیں کر رہی ہے، صوبے کو تنہا چھوڑا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں، انشاءاللہ لڑیں گے۔ ہماری فورس، ہماری پولیس بڑی بہادری سے مقابلہ کر رہی ہے۔ میں ان شہیدوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے یہ ہوا واقعہ اس کی مذمت بھی کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہم کھڑے ہیں، اس صوبے کے ساتھ کھڑے ہیں، عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جتنا بھی مشکل وقت آئے گا ہم اپنے صوبے کے عوام کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ عسکریت پسندوں کے پاس جدید اسلحے ہیں، ان کے پاس نائٹ ویژن گنز ہیں، لیزر گنز ہیں، لیکن خیبر پختونخوا پولیس کے پاس پرانی AK-47 ہے۔ ابھی تک جدید اسلحہ کیوں نہیں؟ دیکھیں یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ اسلحہ جدید آ رہا ہے۔ میں یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ صوبے کو اس کا آئینی حق بھی نہیں دیں گے، اگر جو نیٹ پروفٹ ہے بجلی کا وہ پیسہ آپ نہیں دے رہے ہیں، آپ گیس کا پیسہ نہیں دے رہے ہیں، آپ جو ہمارے حق بنتا ہے ٹیکسوں کے بعد میں وہ آپ نہیں دے رہے ہیں، تو یہ صوبہ کیسے چلے گا؟ تو یہ تو جان بوجھ کر حالات خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور اگر صوبے کی حالات خراب ہوگی تو پاکستان کیسے امن میں رہے گا؟ تو میں یہ کہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت نالائق ہے اور یہ نہیں سوچ رہی کہ یہ صوبہ اکیلا نہیں ہے، اس صوبے سے پورا ملک جڑا ہوا ہے۔ تو ہم نے اس ملک کے صوبے کے حالات کو بہتر کر کے
हम पाकिस्तान के हालात को बेहतर एक सवाल तो करने देना सर, ये सेफ सिटी क्यों नहीं बन सका? पेशावर 2014 से चला आ रहा है मंसूबा, अभी तक ये नहीं बन सका। देखिए वसाइल की बात है ना, मैं तो वसाइल की बात कर रहा हूँ ना, ये वसाइल का इशू है और शुरू से हमें इश्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने तो मज़ीद स्क्वीज़ कर दिया ना, जो हमारा हक है वो भी नहीं दे रहे हैं ना। लेकिन इसके बावजूद इंशाअल्लाह ताला हम आवाम के साथ खड़े हैं, अपनी सूबे के साथ खड़े हैं। ये जितना भी मुश्किल वक्त है इंशाअल्लाह ये टल जाएगा, बहुत जल्दी टल जाएगा। शुक्रिया। पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी गाड़ी को एक और चौकी शहबाज खेल पे खड़ा किया और फिर ये समझते हुए कि चूंकि थाना फायरिंग की जद में है, वो पीछे से अगवी रास्ते से दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे ताकि हम दुश्मनों को जो जवाब दे रहे हैं उसको वो कोऑर्डिनेट कर सकें। इस दौरान चूँकि रात का वक्त था, रात के 12:30-1 बजे का टाइम था, तो उस दौरान नेचुरली हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं था कि हम अपने दुश्मन को उस वक्त देख सकते, तो वो इस दुश्मनों की गोलियों का निशाना बने। उनके साथ उनके जो बॉडीगार्ड्स थे, गनमैन थे 2, वो भी शहीद हुए। जो स्नाइपर वेपन्स का इस्तेमाल था, जो नाइट विजन साइट्स का या थर्मल साइट्स का इस्तेमाल था दहशतगर्दों की तरफ से, ये पेशावर में पहली दफ़ा हुआ है, लेकिन लकी मरवत में और बन्नू में और डेरा इस्माइल खान में इन्होंने कई जगहों पे ऐसे पुलिस को टारगेट किया है। हम इस चैलेंज को निमटने के लिए बेदार हैं। इसके हवाले से कॉन्फ्रेंस हुई है, सूबाई हुकूमत ने, चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ भी हमारी मीटिंग हुई। सूबाई हुकूमत ने जो है वो फौरी तौर पे इनकी थर्मल साइट्स की प्रोविज़न के लिए हमें फ़ंड्स भी जारी किए, और चूँकि ये एक प्रोसेस है, इसमें कुछ टाइम लगता है, वक्त लगता है ख़रीदारी में। 40 साइट्स हमारे पास इस वक्त आ चुकी हैं। 20 साइट्स हमने फौरी तौर पे डेरा इस्माइल खान रवाना की थी, 2 दिन पहले की बात है। 20 साइट्स हमने रवाना की फौरी तौर पे बन्नू में, और इंशाल्लाह ये जो हमारे आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर हम इनकी तमाम की प्रोक्योरमेंट भी कंप्लीट करेंगे। और इसके अलावा दहशतगर्दों को रात के वक्त देखने के लिए हम थर्मल साइट्स के जो ड्रोन कैमराज हैं उनका भी इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ जहाँ थर्मल साइट्स वाले ड्रोन हमारे हैं और जहाँ दहशतगर्द हैं उनको इंशाल्लाह ज़रूर हम देख भी सकेंगे और उनको हम मुनासिब जवाब भी दे सकेंगे। मैं समझता हूँ कि इस तमाम जंग में जो खैबर पख्तूनख्वा में है, और ये पहली दफ़ा जंग नहीं है, आप भी देख रहे हैं इसी सूबे के अंदर जंग को। पहले भी 2006-07 में जब ज़्यादा हालात ख़राब हुए और उसके बाद ये कंटिन्यूस चलता रहा, उस वक्त भी ये जंग जो है अवाम के, मीडिया के, फ़ौज के और हमारी हुकूमत के ताउन से उस वक्त भी जीती गई थी, और इंशाल्लाह ये जंग आइंदा भी हम इंशाल्लाह जीतेंगे और हमें इसमें कोई शक नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की दास्तान जो है वो कुर्बानियों की दास्तान है, और हम इन शहीदों के खून को रायगा नहीं जाने देंगे, और तमाम लोगों को जो इस सूबे के रहने वाले हैं और इस सूबे के अलावा पाकिस्तान के अवाम है उनको हम ज़रूर अमन देंगे। अच्छा सर, सेफ सिटी मंसूबा अभी तक क्यों नहीं बन सका सर? 2014 से जो है ये डिले का शिकार है, अभी तक क्यों नहीं बन सका, क्या मसला है इससे सर? पहले ये थर्मल साइट्स के हवाले से अपडेट बता दें, ये काफ़ी ज़रूरी है। सेफ सिटी चलता रहेगा, ये बता दें थर्मल साइट्स के हवाले से इसकी अफादियत क्या है, और ये पहली मरतबा कितनी लागत से आए हैं, इंट्रोड्यूस है, ये बताएं थोड़ा। देखिए, थर्मल साइट्स जो है बुनियादी तौर पे वेपन्स के ऊपर, कैमरास के ऊपर लगाए जाते हैं, और उसकी मदद से जो इंसानी जिस्म की जो गर्मी है उसकी वजह से इंसान के जिस्म की या जो भी जानदार है उसकी एक छवि बनती है, जिससे दूर से नज़र आ जाता है रात के वक्त भी कि कोई इंसान या कोई ऐसा जानदार है जिसको किसी जगह पे खड़ा हुआ है, डिस्टेंस उसका पता चल जाता है। तो हम इंशाल्लाह बिल्कुल तैयार हैं, और थर्मल साइट्स हमारी पेशावर के लिए भी बिल्कुल पाइपलाइन में है, रेडी हैं, और वो आ जाएंगी। सेफ सिटीज़ का जो आपने सवाल किया, सेफ सिटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रोग्रेस है। आपके तमाम अखबारात में और मीडिया में आज से 2 दिन पहले कवरेज आई थी। हमने एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, और शहर की जो फिजिबिलिटी स्टडी है वो भी हो रही है, और इंशाल्लाह ये हम उम्मीद करते हैं कि हमारा फ़ेज़ 1 जो है इसी साल जून से पहले मुकम्मल हो जाएगा। और चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो भी ज़रूर इसके बारे में बता दें।
पुराने हैं, वहाँ पर कुछ कैमरे ऐसे हैं कि अभी तक वो गैर फाल है। क्यों पर वक्त इक़दाम नहीं किए जा रहे या कैमरों की जो सिस्टम है उसको ठीक किया जाए ताकि ये जो दहशतगर्दी का वाक़या खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर में बढ़ता जा रहा है, ताकि इस पर पुलिस अपना किरदार अदा करे। आप क्या कहेंगे? जी बेसिकली देखिए, जो शहर के थानों में या इलाकों में कैमरे लगाए गए वो तमाम की तमाम अपनी मदद आपके तहत लगाए गए हैं और उनकी मेंटेनेंस का जो निज़ाम है लोकल लेवल के ऊपर है। और जो अभी सवाल किया हमारे दोस्त ने आज़म ने, वो भी यही था कि हम इसको एक कोऑर्डिनेटेड, स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज और इदारे की बुनियाद पे हम इस सिस्टम को लगाएं भी और फाल भी करें, और जिसके लिए हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द कामयाबी हमें होगी। रात की कार्रवाई के बाद कुछ जवाबी कार्रवाई हो रही है, सर्च ऑपरेशन जारी है, क्या सूरत हाल है? कोई गिरफ्तारियां हुई हैं अभी तक? देखिए, बात यह है कि ये एक प्रोसेस है सर्च ऑपरेशन का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिलिटेंट्स का और उसके बाद उनके ठिकानों का। इंशाल्लाह ये जितने भी लोग हैं जो दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं और हमारे लोगों को जिन्होंने शहीद करने में अपना किसी किस्म का ये मनफी किरदार अदा किया है, उन तमाम को कानून के दायरे कार में पूरा लाया जाएगा। थैंक यू सर। चीफ सेक्रेटरी साहब भी खड़े हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। सेक्रेटरी साहब ये बताएं कि ये काफ़ी अरसे से जनूबी अजला में सर पहले अटैक्स हुए थे, अभी पेशावर को टारगेट किया जा रहा है। आप केपी पुलिस को कितनी स्ट्रेंथिंग में आप लोग मदद करेंगे, और जो जदीद हथियार है इनकी खरीदारी के हवाले से केपी पुलिस को काफ़ी चैलेंजेस का सामना था, तो सूबाई हुकूमत इस हवाले से कितनी एक्टिव है और कितनी संजीदा है? और सर फंड्स अब तक फंड्स कितने जारी हुए हैं सर? गश्त के जो व्हीकल्स हैं वो भी बुलेट प्रूफ नहीं है, तो जो फार फ्लंग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इस वक्त जहाँ पे वाक़यात ज़्यादा है, ये बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो हम जितना भी इस वाक़े पे अफसोस का इजहार करें वो कम है, और हमारा सलाम है इन शहीदों को भी और जो इससे पहले अपनी शहादतें दे चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जितनी पुरज़्म है और जितना ये मुकाबला कर रहे हैं, इसका मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं है इसकी मिसाल, बल्कि मैं कहूँगा कि ये दुनिया में इसकी ऐसी मिसाल नहीं होगी जिस किस्म की दहशतगर्दी का और जराइम का ये मुकाबला कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जी हम कितने प्रिपेयर्ड हैं। तो ये जो हमारी तैयारियां हैं और हमारी प्रिपरेशंस हैं, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें थानों की स्ट्रेंथनिंग से लेकर, गाड़ियों की प्रोविज़न से लेकर, भर्तियों से लेकर, असलहा, इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और ये आप सबको मालूम है कि हर साल एक ख़तीर रकम मुख्तस की जाती है, जिसमें ऑपरेशनल बजट्स भी होते हैं, जिसमें डेवलपमेंट बजट्स भी होते हैं, जिसमें इक्विपमेंट का भी ख़रीदने के उसमें होते हैं। अब जब से ये दहशतगर्दी की लहर थोड़ी सी दोबारा उठी है, तो उसमें ज़रूरत इस बात की पेश आई है कि जो दुश्मन के पास या अवाम दुश्मन या मुल्क दुश्मन अनासर के पास जो इक्विपमेंट उनके हाथ लगा है और जिसके ज़रिए वो हमारे लोगों को निशाना बना रहे हैं, उसको भी काउंटर किया जाए। उसके लिए हम लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ पुलिस ने एक प्लान बनाया, कोर हेडक्वार्टर ने हमारी मदद की उस प्लान करने में। हम लोग खुद बैठे और उसमें वज़ीर आला साहब ने 3.25 अरब रुपए फौरी तौर पर इसके लिए मुख्तस किए हैं, जिसमें जो आईजी साहब ने अभी आपको बताया, जिसमें नाइट विजन डिवाइसेस, थर्मल डिवाइसेस, उनकी गाड़ियों की जो शील्डिंग करनी है, उसके लिए जो हमने अपने अफसरान के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ लेनी है, उसके लिए जो अपने असलहा लेना है, उसके लिए जो हमने ट्रेनिंग करानी है, उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको हाथ में बंदूक पकड़ा दूं और आप उसको चलाने के काबिल भी हों। ट्रेनिंग के लिए फिर हमने जो CTD के जितने भी रीजनल मराकज़ हैं उनके लिए, तो ये एक बहुत लंबी लिस्ट है जी। अगर ये किसी का ये ख्याल है कि हुकूमत इस पे कुछ काम नहीं कर रही या कोताही है, ये मैं आपको बिल्कुल वसूख से, यकीन से कह सकता हूँ कि ये हुकूमत की अवलीन तरजीह है
یہ وزیر اعلیٰ صاحب کی اولین ترجیح ہے، یہ وفاقی حکومت کی اولین ترجیح ہے، اور ہم اس میں ہر وہ قدم اٹھا رہے ہیں جس سے ہماری پولیس مضبوط ہوگی اور ہم اپنے اس ملک دشمن عناصر کا بھرپور مقابلہ کر سکیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو سر. تھینک یو سر. منانا. مہربانی جی.